Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where we cover the news from two important newspapers, that is the Hindu and Indian Express. Right. So before we start, I would like to tell you about the topics that we'll be discussing today. So these are the list of the topic that I'll be discussing. Today is 21st of September. So the first topic is self-reliance for the self-esteem. This is an editorial which is very important reported in the Indian Express. Now the second topic is India's extend grant to Maldives. Third is ICMR keen on saliva test for the COVID-19. This is by Indian Council for Medical Research. The fourth topic is controversy over the farms bill, the ongoing three bills which has raised severe concern regarding the farm community and chaos in the parliament. So उसके regarding जो important बात है वो मैं आपको बताऊंगा. And strategy for the vaccine administration, because there are some official clarification coming from the government that what are the execution plan of the vaccine that would be coming in the coming 2021 March, the first quarter of the March. So these are all the important news that I'll be discussing. Apart from this, we'll have some MCQs question at the end of this video and the explanation of Saturday question. तो Saturday के जो सवाल थे उसके correct options और explanation पे मैं आपको वीडियो के end में बताऊंगा. So stay tuned till end of this video. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy on YouTube. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. Now coming to the first article of the day, this is from the Indian Express and an editorial. You can find this editorial in today's Indian Express. This is written by Durga Shakti Nagka. She is an IAS officer and she was in news regarding the illegal sand mining. She was being suspended also. So she has a drive against the corruption of illegal mining and under his jurisdiction in the Gautam Buddha Nagar, also known as Noida in Delhi NCR area, right, is under the jurisdiction of Uttar Pradesh government. So यहाँ पे जो चीज़ें important है वो आपके general studies paper 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा important है. And this is the article which again can be helpful for your general studies paper 4, जहाँ पे case study से अगर related कोई सवाल आते हैं, so you can easily quote this, right? So from case study point of view, these things are very important. Where the article is self-reliance for self-esteem. So recently, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है would be a part of a post pandemic economic revival, जहाँ पे 20 लाख करोड़ रुपीस के आसपास दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि 10% ऑफ द जीडीपी है हमारा. तो प्राइम मिनिस्टर ने उसके बाद कहा वी नीड टू कॉल फॉर वोकल फॉर लोकल, राइट. तो वोकल फॉर लोकल का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि चीज़ों को यहाँ पे बाय किया जाए, लोकली प्रोड्यूस किया जाए. साथ के साथ ये भी मतलब है कि जो लोकल चीज़ है उसको हमें प्राउडली प्रमोट भी करना है. वी नीड टू प्रमोट लाइक द थिंग्स द फॉरेन गुड्स आर बीइंग प्रमोटेड और एडवर्टाइज इन इंडिया. इक्वली वी हैव टू प्रमोट द लोकल प्रोड्यूस गुड. तो जो हमारी आत्मनिर्भर भारत मिशन है उसका जो पूरा एम है इज टू एम्पावर द पीपल ऑफ इंडिया, because ultimately the things that is being produced in India, manufactured in India and consumed in India would be substantially contributing to the GDP of the economy, right. तो कंट्री में GDP, क्योंकि आपको पता है रिसेंट में 29.3% तक हमारी जो GDP है 27.9% के आसपास GDP डिमिनिश कर गई है. तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको देखें. एंड हाउ द थिंग्स कुड रिवाइव इज़ द ओनली ऑप्शन वे आउट. उसके बाद एक एक चीज़ के बारे में MSME सेक्टर के बारे में भी आपको बताऊंगा आगे. Now self-reliance is equal to the self-esteem. What the editorial in this author ने इसमें यहाँ इस चीज़ को बारे में बताने की कोशिश की है. जो दुर्गा शक्ति नागपाल है उनका कहना है कि जो self-reliance है वो self-esteem के बराबर है. And only the self-esteem nation can serve as a diverse need of the population and provide them the choices, right? तो जब तक सेल्फ रिलायंस बनने की कोशिश करनी है वहाँ पे सेल्फ स्टीम को भी जोड़ करके देखने की ज़रूरत है. And a content nation can also contribute to the welfare of the countries with a sense of pride. So right, so we should feel that this is a pride moment and the initiative that has been taken by the government ultimately upscale your self-esteem, which inevitably will be building the self-reliance of the country. Now MSME सेक्टर की बात करें, जिस तरह से मैंने आपको बताया जो GDP का कंट्रीब्यूशन है MSME का दैट इज़ 30%. ये जो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स बताता हूँ ये आप बहुत ही अच्छे से इसको अपने
जो भी कॉपी आप मेंटेन कर रहे हैं नोट्स के उसमें लिख लें, बिकॉज दीज थिंग्स आर द पंच लाइन्स और द फोल्डर पॉइंट दैट वुड बी रेलिवेंट फॉर द एग्जामिनेशन, राइट। तो एमएसएमई का 30% कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि एमएसएमई के लिए लोकल फॉर वोकल मिशन को स्टार्ट किया जाए। और जो एंटरप्राइजेस है काफ़ी बड़ी है, बहुत लंबे लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलता है, मेनी पीपल आर अनएम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर द सर्वाइवल, राइट। तो जब एमएसएमई सेक्टर पूरी तरह से टूट चुकी है, उस टाइम पे जितने लोग यहाँ पे काम करने वाले दे हैव ऑल्सो अ ह्यूज लॉस विच हैज अकर्ड टू देम, राइट। सो दे डू नॉट हैव द सर्वाइवल मनी, दे आर स्ट्रगलिंग for their daily wages because the companies are completely shut down. After the unlocking, many industries has been working properly, but still the full-fledged MSME is not working in India. तो रिफॉर्म जहाँ पे आत्मनिर्भर भारत में की गई है वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान दिया गया, जैसे कोलैटरल फ्री क्रेडिट की बात की गई थी एमएसएमई की, जिनके टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हैं उन लोगों को, तो गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया रखा है। उसके बाद एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ द सेक्टर एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस एक्सक्लूसिवली फॉर इट का मतलब यहाँ पे एमएसएमई से है, राइट। तो एमएसएमई के रिवाइवल के लिए सरकार ने जोर दिया है, बट थिंग्स आर नीडेड मोर, बिकॉज सिर्फ ऐसे लोग जिनको 5 करोड़ से जिनका कम का टर्नओवर है उनको लोन नहीं दिए जाएंगे। दिस वुड बी अगेन वेरी डिट्रीमेंटल टू दिस पॉलिसी विच गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इनकलकेट इन द इकोनॉमी। तो ज़रूरी ये है कि छोटे लोगों को भी इंक्लूड किया जाए। एंड अ स्ट्रॉन्गर मैन्युफैक्चरिंग बेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो पूरा कॉन्सेप्ट है आत्मनिर्भर भारत का वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की तरफ कहीं ना कहीं लेको जाने के, बिकॉज वी आर मोर इंक्लाइंड कि चाइना की जो डोमिनेंस है वो इंडियन मार्केट में कम हो सके, तो उसको बढ़ाने के लिए हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको आगे लेके जाना पड़ेगा। चाइना इस वजह से आगे क्योंकि वहाँ पे हर एक जगह पे हर एक सिटी में मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और लोग वहाँ से चीज़ों को इम्पोर्ट करते हैं, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने के लिए ज़रूरी है कि वी नीड टू इंक्रीज द सप्लाई परचेज एंड लोकल रॉ मटेरियल एंड बिल्डिंग द एलीड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, राइट। मैं आपको एक डेटा बताऊंगा कि कितने ज़्यादा हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, आगे उसको बताते हैं। कंसर्न की बात करते हैं, वन ऑफ द इमीडिएट फॉल आउट ऑफ दिस मेजर वुड बी द क्रिएशन ऑफ लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जो हमारी आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो ली गई है उसमें इकोनॉमिक रिवाइवल की तो बात की गई है, बट ऐसे लोग जो स्किल्ड है या जो अंडर स्किल्ड वर्कफोर्स है उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे दी जाएगी इसके बारे में देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट हैज़ नॉट प्रोवाइडेड अ क्लैरिटी दैट पीपल हु आर अनस्किल्ड who were already working somewhere in the unorganized sector cannot be retrenched into the government like MSME और किसी दूसरे सेक्टर्स पे। तो यहाँ पे भी एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। ना बात करें इंपोर्ट फ्रॉम चाइना कि कितनी चीज़ों को इंपोर्ट की जाती है, तो जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से उसकी जो पूरी एसेट की जो वैल्यू है दैट इज़ $65 बिलियन। आप देख सकते हो सिर्फ अकेला चाइना $65 बिलियन का ट्रेड करता है इंडिया के साथ। एंड मोस्ट ऑफ दिस इम्पोर्ट आर एसेंशियल। ऐसा नहीं है कि हम बहुत लग्जरी गुड्स वहाँ से मंगा रहे हैं, बहुत ही एसेंशियल आइटम्स चाइना से मंगाई जाती है जिसका खर्च सरकार को $65 बिलियन, पूरी जो मार्केट में जो मनी सर्कुलेशन है जो पूरी एसेट है वो $65 बिलियन की है। उसमें जो मटेरियल इंपोर्ट होती है दैट आर रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स फॉर द इंटरमीडिएटरीज रिक्वायर्ड इन प्रोड्यूसिंग the finished goods, large number of enterprises across the several sector including the MSME। चाहे वो आप मेडिकल की बात करें चाहे ड्रग्स की बात करें, बहुत सारे ऐसे एसेंशियल चीज़ें हैं जो कि चाइना से इंपोर्ट होती है। तो देखना होगा इसके डिपेंडेंस को कैसे कम किया जा सकता है। डेफिनेटली दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अ कप ऑफ टी विच गवर्नमेंट वुड बी डूइंग इन अ recent 2 or 3 years। दिस नीड अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी एंड आई पर्सनली फील अगर 5 साल से 10 साल तक का अगर कुछ रिवाइवल प्लान बनाया जाए तो डेफिनेटली वी कैन चेज द टारगेट, राइट। Now, for example, the pharmaceutical sectors import nearly 70% of its raw material and drugs intermediaries, right? जो intermediates हैं 70% तक import की जाती है सिर्फ चाइना से। And you see the drug market in India, the pharmaceutical in India is a huge market, right? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो इंपोर्ट हो रही है वो डायरेक्टली चाइना से हो रही है। तो यहाँ पे भी खास करके एक अलग से गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले सकती है जहाँ पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सेल्फ रिलायंस की बात की जा सकती है। एंड आई फील कि इस तरह के क्वेश्चन आपके मेंस में भी पूछे जाएंगे।
नाउ नीड फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस अथॉरिटी की बात की है, जो एडिटर ने इसमें बताने की कोशिश की है कि डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप एक हायरार्की देखोगे गवर्नमेंट की वर्किंग में, तो जब जो सबसे जो बॉटम है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती है, राइट। तो एक ऑटोनोमस अथॉरिटी बनाने की बात की है, जिसके जो हेड करेंगे उस चीज़ को वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, कई जगहों पे डीएम, कई जगह पे डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं। तो एडिशनल जो डीएम होंगे, ही वुड बी मैनेजिंग इट विद द टेक्नोक्रेट्स, राइट, ताकि इस प्रोग्राम को अच्छे से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जा सके। उसके अलावा द अदर मेजर्स वुड इंक्लूड सेटिंग अप ऑफ सर्टेन कंपनीज, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक डेडिकेटेड टाइमलाइन बना करके इंडस्ट्रीज के क्लस्टर्स को भी स्टैब्लिश किया जा सकता है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ के लिए एलोकेशन की गई है। नाउ एक ऐसी अथॉरिटी बनाने की ज़रूरत है जिसमें 24/7 फैसिलिटेशन सेंटर बनाई जाएगी, जो कि लोगों को, जो नई कंपनीज आएंगे, उनके ग्रीवांसेस को, उनके डाउट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। नाउ ये जो एजेंसी बनेगी, दिस एजेंसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस अथॉरिटी जो होगी, वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर क्रिएटिंग द पब्लिक अवेयरनेस अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स। जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स होंगे, उन सारी चीज़ों से डिस्कशन करके उसको एग्जीक्यूट करने की जो पूरी कोशिश होगी वो इस एजेंसी की होगी। एंड द अथॉरिटी लाइज विद द डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस अथॉरिटी, राइट। Now it will be also responsible for the matter related to the workforce welfares, particularly with respect to health, education and decent civic conditions. तो जो लोग एम्प्लॉयड है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए भी एक जो वेलफेयर प्रोग्राम या स्कीम्स जो हैं, ये सारी चीज़ें की जो जिम्मेवारी होगी, सो द एंटायर जुरिस्डिक्शन वुड बी लाइंग विद द डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस अथॉरिटी। तो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस अथॉरिटी एक बहुत ही अच्छी सजेशंस है, जिसको आप अपने जनरल स्टडीज़ के पेपर 4 में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो एज एन केस स्टडी। अगर कुछ पूछा जाए आपसे कि किस तरह से होना चाहिए, तो ये वाली डायरेक्ट सजेशन आप वहाँ पे कोट कर सकोगे। दिस वुड गिव यू अ गुड मार्क्स। नाउ कमिंग टू द सजेशन फॉर दिस मिशन का यहाँ पे मतलब है जो आत्मनिर्भर भारत है उसमें, या जो सेल्फ रिलायंस की बात की गई है उसमें और क्या क्या चीज़ें की जा सकती है। तो सबसे पहली बात है, एक अम्ब्रेला एक्शन प्लान होने की ज़रूरत है, दैट शुड बी ड्रॉन बाय द नीति आयोग। नीति आयोग पर से इज अ थिंक टैंक ऑफ द इंडिया विच has interested to build a concept and ideas that would lead India to the developing economy or developed economy, right? तो उसमें पॉसिबल कैटेगरीज बनाने की बात की गई है। जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत अभियान है, उसमें लोकल टू वोकल की तरफ जो भी प्रोग्राम्स बनी है वो नीति आयोग के एंड से आनी चाहिए, राइट। और एक अम्ब्रेला प्रोग्राम होना चाहिए। मॉनिटरिंग एजेंसी बनाने की बात की गई है, दैट वुड बी करेक्टिंग विदाउट एनी डिले, एनी फर्दर डू, दे हैव टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड पॉलिसी बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट at the bottom of the state government, right? और अगर हर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दे नीड टू वर्क इन द कॉन्सोनेंस विद द अम्ब्रेला प्रोग्राम, दैट इज लाइक जो रोबस्ट प्रोग्राम होगा वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हैं या फिर जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड या एड मिल रही है, दैट हैज़ टू बी इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन अ प्रॉपर मैनर, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस पॉइंट है। और जो हर डिस्ट्रिक्ट्स होंगे या जो ग्रुप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट होंगे, क्योंकि देखो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, अगर आपने गवर्नेंस इन इंडिया पढ़ा है, लक्ष्मीकांत की बुक है दूसरी बुक अपार्ट फ्रॉम इंडियन पॉलिटी, वहाँ पे समझाई गई है किस तरह से डिस्ट्रिक्ट काम करती है। जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लॉक्स होते हैं, सब ब्लॉक्स होते हैं, पंचायत होते हैं, और जो क्लस्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उसको कमिश्नरेट कहा जाता है। कई जगह पे कमिश्नरी होती है, राइट। तो हर एक कमिश्नरेट में 6 डिस्ट्रिक्ट जो होती है वो इंक्लूड होती है। कई जगहों पे अलग अलग डिफरेंस, बट मिनिमम 6 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक कमिश्नरेट बनता है, जहाँ पे कमिश्नर बैठता है और कमिश्नर के साथ उसी कमिश्नरेट में डीआईजी लेवल के जो आईपीएस ऑफिसर है वो होते हैं। और एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है जो कि आईएएस रैंक के होते हैं, और एक आईपीएस ऑफिसर हु इज द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये हायरार्की, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या आपने पीएसआईआर पढ़ा हुआ है तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट, बट थोड़ा सा बेसिक आपको जानना जरूरी है, राइट। Now we would work out with more detailed action plan, the charter responsibility for the ground level official and the departments. So this is very essential कि जो suggestions हैं उनको incorporate किया जाए, ताकि जो प्रोग्राम बनी गई है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान बनाया गया है, उसको एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव या स्कीम बनाया जा सके, right? So these are the suggestions that is coming from the Durga Shakti Nagpal, and you can directly quote her as well, right? अगर आप कोट नहीं करना चाहते हैं तो आप जनरल स्टडीज के पेपर 4 में इस तरह की चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके अपने आंसर्स को अच्छे से लिख सकते हैं, right? Coming to the other
टॉपिक दैट इज इंडिया एक्सटेंड ग्रांट टू मालदीव्स. दिस इज अगेन फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस. आपको नेशनल पेज में ये न्यूज़ मिल जाएगी जहाँ पे इंडिया ने एक्सटेंशन दिया है ग्रांट का मालदीव्स को. एंड मालदीव्स इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री एंड अ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस. तो ये जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो IR के सेक्शन है वहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ $250 million to Maldives to mitigate the economic impact of the COVID-19 pandemic. और कोविड-19 का जो डिवास्टिकेटिंग इफेक्ट है वो मालदीव्स के टूरिज्म में बहुत ज़्यादा पड़ा है. क्योंकि मालदीव्स की आप टोटल अगर रेवेन्यू की बात करो तो कंट्री की जो इकोनॉमी है वहाँ पे एक GDP का जो कंट्रीब्यूशन है 8.1% के आसपास है. एंड टूरिज्म कंस्टिट्यूट थर्ड ऑफ द मालदीव्स नेशनल रेवेन्यूज. तीसरे जो जितनी इकोनॉमी जनरेट हो रही है तो तीसरा नंबर है टूरिज्म का वहाँ पे. तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है मालदीव्स एज एन टूरिज्म डेस्टिनेशन. और जो IMF के मुताबिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उन्होंने प्रोजेक्शंस दी है दैट द कंट्री इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 8.1% इन 2020. सो दिस कॉन्ट्रैक्शन वुड बी इन माइनस. सो दिस इज रादर 8.1% की जो है वो कॉन्ट्रैक्शन देखी जा सकती है. नाउ ग्रांट वाया ट्रेजरी बॉन्ड की अगर बात की गई है तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन एम्बेसी जिस तरह से जो अमाउंट दी गई है 1825 करोड़ रुपीस. सो दिस वुड बी एक्सचेंज वुड बी प्रोवाइडेड बाय द ट्रेजरी बॉन्ड. जो ट्रेजरी बॉन्ड है उनके सेल के थ्रू SBI वहाँ पे माले में जो उनके इंटरनेशनल बैंक्स होंगी उनको देगी. SBI की जो माले है वहाँ पे वो दिया जाएगा. एंड दिस वुड बी फॉर द रीपेमेंट ऑफ 10 ईयर. राइट. इंडिया में जो SBI की ब्रांच है माले में उनके साथ कोलैबोरेशन की गई है और जो प्रीपेमेंट की टाइम है दैट इज 10 years. And the grant would be provided after the request of the Maldives president and the prime minister of the India. Right. तो जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कि जो कुछ ग्रांट है वो उनको वहाँ पे दी जानी चाहिए. सो ऑन द रिक्वेस्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन एक्शन एंड एलोकेटेड द ग्रांट. नाउ अगर असिस्टेंस की बात करें तो इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड द सब्सटैंशियल असिस्टेंस टू द मालदीव्स ड्यूरिंग पेंडेमिक एंड अ टीम ऑफ डॉक्टर्स. लाइक क्या क्या मदद की है तो हमने यहाँ पे उनके टीम्स ऑफ डॉक्टर स्पेशलिस्ट भेजा था मार्च के टाइम में जब कोविड-19 के प्रिपेयर्डनेस चल रही थी. एक कंसाइनमेंट गई थी 5.5 टन की जो एसेंशियल मेडिसिन थी जो वहाँ पे ज़रूरत थी वो सारी चीज़ों को भेजा गया है. उसके बाद एक 6.2 टन ऑफ मेडिसिन हैज़ बिन एयरलिफ्टेड इन सिटीज़ टू माले और 580 टन फूड्स भी प्रोवाइड किए गए थे मई में. तो ये सारी असिस्टेंस है जो इंडिया ने मालदीव्स को दी है. Now India has also lifted the export restriction on the medical consumable, respiratory apparatus जो हैं, टेस्टिंग किट्स हैं या ऐसे कोई रीएजेंट्स हैं जो कि पेंडेमिक के टाइम में ज़रूरत है कोविड-19 से फाइट करने के लिए. उन सारी चीज़ों में जो भी रिस्ट्रिक्शन थी इंडिया की तरफ से उन सारी चीज़ों को हटा लिया गया. राइट. Now coming to the other news that is ICMR keen on the saliva based test. तो किस तरह से saliva based test की तरफ ICMR आगे बढ़ रही है उसको लेकर के बातें हैं. So let's see what are the details that are coming. Now, according to the Union Health Ministry, the Indian Council for Medical Research is actively exploring the saliva-based test for the COVID-19. और मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि कोई सिग्निफिकेंट म्यूटेशन नहीं दिख रही है SARS-CoV-2 के जो वायरस है उसमें. राइट. इट वाज एक्सपेक्टेड कि अगर म्यूटेशन हाई होगा तो फिर टेस्टिंग को भी जो टेस्टिंग के जो स्ट्रैटेजी उसको भी चेंज करनी पड़ेगी. अगर मैं दिल्ली के केसेस के एग्जांपल बताऊं तो जहां पे केसेस 4500 तक जा रहे थे पर डे या 4800 के आसपास थे वो अभी घट करके 3900 या 3800 के आसपास हो गए. सो द सेकेंड वेव कैन नॉट बी एक्चुअली प्रिडिक्टेड और एक्चुअली कैन बी कन्फर्म. इट इज़ मोर और लेस द डाउनफॉल ऑफ द अनलॉकिंग. राइट. अनलॉकिंग की वजह से जो चीज़ें बढ़ी हैं ये उसके कारण पे जा सकते हैं. नाउ ICMR हैज़ वैलिडेटेड कि जो टेस्ट होंगे वो काफ़ी रिलायबल होंगे. बट ये सारी चीज़ों की जो अप्रूवल है वो US की जो FDA है फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन उनके अप्रोचेस को उनके जो पैरामीटर्स हैं उनको अभी पूरा नहीं करता है. इसी वजह से देखना होगा कि इसको किस तरह से ICMR आगे अप्रूवल देती हैं. नाउ लार्ज स्केल सीक्वेंसिंग की अगर बात करें तो ICMR हैज़ बिन कंडक्टिंग द लार्ज स्केल सीक्वेंसिंग और नेशनली जो स्ट्रेन है SARS-CoV-2 के उसको कलेक्ट किया गया, उसके डिटेल म्यूटेशन को पढ़ा गया, किस तरह से चीज़ें इवॉल्व कर रही है. सो दिस कैन बी ओनली अवेलेबल अर्ली अक्टूबर. जो ये सलाइवा बेस्ड टेस्टिंग है सरकार की कोशिश है क्योंकि पार्लियामेंट में जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन उन्होंने कहा भी है कि बाय अर्ली अक्टूबर वेरी सून इंडिया वुड बी कंडक्टिंग द सलाइवा बेस्ड टेस्ट.
नो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि जो प्रपोजल है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। कुछ फाइनेंसेस की बात की गई है कि किस तरह से फाइनेंसेस के जो कमिटीज़ हैं उनके जो सजेशंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। सो दैट वुड बी स्ट्रेंथनिंग द सर्वेलेंस एंड इन्फेक्शियस डिजीज एंड आउटब्रेक इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑफ द एंट्री। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेडिकेटेड इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट हॉस्पिटल इन ईच डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड पब्लिक लेबोरेटरीज एक्सेट्रा। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दीज थिंग्स हैज़ बीन कोटेड इन द पार्लियामेंट में ये चीज़ें स्पीच में कही गई है। तो अगर आप जब भी आंसर लिखते हैं बेंच में तो ये सारी चीज़ों का रेफरेंस आप ले सकते हैं। Now coming to the other topic, that is controversy over the farm bill. You can find this editorial in the Hindu. This is written by Himanshu. He is a professor at Jawaharlal Nehru University. So कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है जिस तरह से फार्म सेक्टर में जो बिल पेश किए गए हैं अभी रिसेंट पार्लियामेंट में पास हुए हैं उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन की तरफ से भी केस की गई है। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज़ पेपर 3 और यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके सेल्फ बेस्ड ओपिनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरह के सवाल में आपके ओपिनियन आपसे पूछे जाएंगे। तो बी श्योर यू आर रेडी विद द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और ये प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक वर्चुअल मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जिस तरह से अपोजिशन ने मिसलीड किया है फार्मर को ऑन दिस बिल, सो दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ और जो भी बिल आई है वो फार्मर के फेवर में है। बट इसके बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस हैं क्योंकि कई कैबिनेट के ऐसे मिनिस्टर हैं, हरसिमरत कौर भी है जिन्होंने रेजोल्यूशन दिया है इसको लेते हुए और पंजाब में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट चल रही है। तो लेट्स सी, बिल तो पास हो गई है बट इसके बाद क्या सरकार इसमें कुछ अमेंडमेंट करेगी। सो बिल इंक्लूड 3 इंपॉर्टेंट बिल है। द फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स जहाँ पे प्रमोशन और फैसिलिटेशन की बात की गई है। दूसरा द फार्म एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट फॉर द प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 और जो आखिरी बिल है दैट इज एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020। ना बात करें पूरे बिल की तो एम क्या है पूरा बिल का, जो तीनों बिल सरकार ने दिया है, सरकार की जो कोशिश थी वो ये है कि दैट शुड डू अवे द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर बाय क्रिएटिंग अ फ्री मिडिल मैन गवर्नमेंट टैक्स फ्री आउटसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द एपीएमसी। तो जो एपीएमसी में पहले ऑलरेडी जिनको मंडीज़ में रजिस्टर्ड करना होता था, जो फार्मर को लाइसेंस चाहिए होती थी, तो सरकार का कहना है कि इसमें मंडीज़ में रजिस्टर करने के लिए हो क्या रहा था, एक लाइसेंस राज क्रिएट हो रहा था, राइट। और बहुत सारे ऐसे मंडीज़ वाले थे जो कि अपने हिसाब से प्राइस को कहीं ना कहीं हैंडल कर रहे थे, राइट। डिस्पाइट द फैक्ट गवर्नमेंट हैज़ टोल्ड कि जो प्राइस की जो डीरेगुलेशन है वो फार्मर के ध्यान को देखते की जाएगी। बट इसमें कहना है कि जो प्राइवेट स्टॉक होल्डिंग है उसके तरफ कहीं ना कहीं सरकार आगे बढ़ रही है, राइट। तो जो एरियाज़ है जो फ्री मिडिलमैन करने की बात की गई है, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। नाउ दूसरी अटेम्प्ट है कि जो एपीएमसी है दैट आर नॉट न्यू इन इंडिया, बहुत पुरानी है एपीएमसी और इसके जो सक्सेसिव गवर्नमेंट है पिछले 20 वर्षों से ये चीज़ें कंटिन्यूसली डिस्प्यूटेड है, राइट। और बहुत सारे ऐसे फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एग्री किया है कि एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है दैट इज नीड टू बी रिफॉर्म और जो फंक्शनिंग ऑफ मंडीज है दैट इज अ इम्पॉर्टेंट कंसर्न। देखो मंडीज इज समथिंग लाइक अ गार्जियन, राइट, जहाँ पे फार्मर इज बीइंग प्रोटेक्टेड, उनके राइट्स जो हैं, उनको किस तरह से चीज़ों को सेल करना है वो सारी चीज़ें मंडीज डिसाइड करती है। बट आप सारी चीज़ को एक बार रेगुलेशन को रिमूव कर दोगे तो अगर ये चीज़ें रिमूव हो जाएगी तो ये जो फार्मर बचे हैं ये कहाँ जाएंगे वापस, राइट। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंसर्न कर रही है फार्मर्स को। तो दूसरी और इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि जो कंसल्टेशन होनी चाहिए थी स्टेट गवर्नमेंट से वो नहीं हुई है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ें स्टेट के लेवल पे रिफॉर्म होती है, जो चीज़ जो स्टेट लिस्ट के अंदर आती हैं, अगर मैं आपको बताऊं जो ट्रेड और एग्रीकल्चर है दैट इज़ अंडर द स्टेट लिस्ट, बट इसको लाने से पहले स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी इंटीमेशन नहीं दिया, स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी व्यूज़ नहीं लिए गए, इसी वजह से ये और ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई है। Now, the attempt to pass the bill over the proper consultation has definitely added a mistrust to the stakeholder and the state government, right? तो ऐसी चीज़ें जो स्टेट सब्जेक्ट के अंदर है, अगर उस पर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो स्टेट की कंसल्टेशन मैंडेटरी होती है, या आपने पॉलिटी में पढ़ा भी होगा, राइट। और एक बिहार के एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, जब बिहार में एपीएमसी को 2006 में एबॉलिश कर दिया गया था, तो एबॉलिशन के बाद देखा ये गया कि जो एमएसपी जो एक सपोर्टिव प्राइस मिलती है सरकार की तरफ से, दिस इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सारे जो प्रोड्यूस है, जो फार्म प्रोड्यूस है वो लिस्टेड होते हैं, उनके मिनिमम प्राइस
गवर्नमेंट ऑलरेडी बता देती है कि इतने में कम से कम आप सेल कर सकते हैं, अगर कोई आपसे सेल नहीं, कोई आपसे अगर खरीद नहीं कर रहा है तो, राइट। तो फार्मर के पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि अगर उनके फार्म प्रोड्यूस कहीं भी नहीं बिकते हैं तो वो एमएसपी पे सीधे एफसीआई को बेच सकते हैं, राइट। तो अब जो दूसरा कंसर्न वो ये है पंजाब और हरियाणा का, कि फार्मर का कहना है कि अगर एमएसपी हट गई तो क्या प्रोक्योरमेंट जो है लार्ज स्केल में वो किस तरह से होगी, जबकि सरकार ने ये कहा है कि एमएसपी को अभी नहीं हटाया जाएगा। बट the farmer community says कि it is the intention of the government that gradually they would be removing the MSP. So this is the future course of action that government has to take, but as of now presently the government has not confirmed the removal of MSP. तो ये चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिए, अभी सरकार ने exactly इसको हटाया नहीं है। नाउ कंसर्न्स क्या है फार्मर के, तो जो फार्म ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मुताबिक जो बिल है ये एक लार्ज एजेंडा है जो कॉर्पोरेटाइजेशन को बेसिकली बढ़ावा देगा इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और जो गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटने की कोशिश कर रही है। और जो इमीडिएट कंसर्न है दैट इज़ द अटेम्प्ट टू वीकेन द एपीएमसी मंडीज़ को इंडिविजुअली क्या है, एक तरह से मंडीज़ को कम किया जा रहा है, इवेंचुअली मंडीज़ वीक हो रहे हैं, और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो गारंटीड है बाय द गवर्नमेंट उसके तरफ क्या डिसीजन होगा, इसमें फार्मर्स को क्लैरिटी चाहिए। And although the government has clarified कि bill do not apply for the withdrawal of procurement by the state MSP, ये ऑलरेडी सरकार ने कहा है कि जो MSP है जो स्टेट जिसमें प्रोक्योर कर दी है उसको अभी नहीं हटाया जाएगा, राइट। सो थोड़े पॉलिटिकली भी मोटिवेटेड है क्योंकि अपोजिशंस दे आर नॉट गाइडिंग द फार्मर्स वेल, पीपल आर प्रोटेस्टिंग, बट कुछ हद तक बिल फेवर भी है। अब अगर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको रिमूव करने की ज़रूरत है, जिनको हटाने की ज़रूरत है, जो फार्मर के डिमांड के अकॉर्डिंगली अच्छी होगी, तो सरकार को उन सारी चीज़ों को अमेंड भी करने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंसर्न ऑफ द फार्मर्स। Now coming to the last topic, that is strategy for the vaccine administration. यहाँ पे कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन दी गई हैं जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है उनके तरफ से। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 3 एंड पेपर 2, राइट। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन, उन्होंने कहा है कि एक डिटेल स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि किस तरह से जो वैक्सीन है कोविड-19 के उसकी प्रोडक्शन होगी, किस तरह से स्टोरेज होगी, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और जो यूजेस है उसको कैसे किया जाएगा, राइट। तो ही ऑल्सो सेड कि जो एब्सेंस ऑफ वैक्सीन है यहाँ पे हमारे पास एक अभी जो स्ट्रिक्ट एक्शन ये है कि सब लोग मास्क वेयर करें, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, पर्सनल हाइजीन को बनाए रखें। दिस इज द ओनली इफेक्टिव वे टू फाइट द कोविड-19 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अंटिल द वैक्सीन इज नॉट बीन प्रोड्यूस्ड, राइट। डेवलप जब तक नहीं होती है वैक्सीन तो उसके बाद अक्रॉस द वर्ल्ड चीज़ें कैसे चलेंगी। अगर मैं आपको बताऊं पूरे विश्व में 145 कंट्रीज बेसिकली कैंडिडेट हैं वैक्सीन के जो कि अपने अलग अलग स्टेजेस पे हैं, और 35 उसमें ऐसे हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल 2, 3 और बेसिकली 1, 2 और 3 के स्टेजेस में हैं। एंड इन इंडिया स्पेशली 30 कैंडिडेट आर सपोर्टेड इंडिया, 30 ऐसे हैं जो सिर्फ इंडिया में कोलैबोरेशन पे काम कर रहे हैं। उसमें कई एडवांस स्टेजेस पे हैं जैसे फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 पे जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है हमारी SII, उन्होंने फेज़ 3 के ट्रायल को भी स्टार्ट करने की बात कही है, राइट। एंड टू इन्हांस द प्रिपेयर्डनेस, जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं जीनोम सीक्वेंसेस के, जहाँ पे 2000 वायरस हैज़ बीन डन विद द 15 repository and 40,000 वायरस हैज़ बीन क्रिएटेड टू इनकरेज द रिसर्च वर्क। तो इंडिया में ओवरऑल डेवलपमेंट सही है। ग्लोबली एवरी कंट्री आर ट्राइंग देयर बेस्ट। रसिया की जो स्पुतनिक 5 वैक्सीन है वो भी बहुत हद तक आगे स्टेजेस में चली गई हैं। सो लेट्स सी, इज एक्सपेक्टेड कि कहीं ना कहीं मार्च 2021 तक वैक्सीन डेवलप हो जाएंगे। तो जो सबसे बड़ी बात पूछी जा रही है वो ये कि व्हेन इंडिया विल हैव द वैक्सीन, तो ये यूनियन मिनिस्टर ने कंफर्म किया ऑफिशियल स्टेटमेंट में कि वैक्सीन वुड बी रेडी समवेयर बाय मार्च 2021। और जब वैक्सीन आएगी तो वो सब लोगों को नहीं, पहले सबसे पहले जिसको सबसे पहले जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली उनको दी जाएगी, चाहे वो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर हो, डिफेंस पर्सनल हो, सीनियर सिटीजन हो, इन सारे चीज लोगों को पहले दी जाएगी डिस्पाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ द परचेजिंग पावर ऑफ एन इंडिविजुअल, right? So this is how the execution plan has been prepared with regards to the vaccination of the vaccine of the COVID-19, right? Now बढ़ते हैं अपने आंसर्स की तरफ। जो सैटरडे के क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा। तो जो पहला सवाल था उसका करेक्ट ऑप्शन है सी, that the prehistoric painting help us to understand about the human being, their life, food habit,
their daily activities, and they understand the way of the thought. Second statement भी यहाँ पे correct है, that the prehistoric period remain a great witness to the evolution of human civilization through numerous rock weapons, tools, ceramic, and bones. So for more details, you can refer to the NCERT class 11th of Fine Arts, where you can read more details about it, right? Now coming to the second question, यहाँ पे जो correct option है that is B, and these are almost self-explanatory. आप पॉलिटी के बुक में भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं. Now let's move ahead with the today's MCQs of the day. Now, the first question is coming from the culture. Consider the following statement with regards to religious practice during the Mauryan dynasty. There was no multiple form of worship or religious practices. And the second is worship of yakshas and mother goddess were prevalent during this time. So if you read Mauryan dynasty, you can easily answer this question, and you can write only options, right? आप अपने comment section में, वीडियो के comment section है, उसमें A, B, C, D करके सिर्फ option लिखें. If you have any additional information regarding the Mauryan dynasty or their temple architecture, religious practices, that also you can share us in the comment section down below. Modern history से जो दूसरा सवाल है, with consider the following statement about the Monte Merlo reform. It barred the association of Indian with the executive council of the viceroy and the governors. And the second statement is it accepted the system of separate electorate in India. So Monte Merlo reform is again very important from prelims exam perspective. तो ये बहुत important है. आप options बताएं हमें A, B, C या फिर D. Whatever you feel is the correct answer. You can write your answer in the comment section down below. Additional information can also be said in the comment section, right? और अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं. Will be more than happy to assist you. For time being, I am signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.